Hello, this is me, Samar. Assalamualaikum, this is me, Ashir. We're here with Hello Pakistan to promote our upcoming film, Nabalig Afraad. which is coming to cinemas this Eid al-Adha. I think बहुत ही मज़ेदार और कॉमिकल तरीके से इस बारे में बात हुई है, सो इट्स नॉट टू प्रीची एज वेल. तो आई थिंक जो यंग ऑडियंस है, जब आप कॉमेडी में और ह्यूमर में और सैटायर में कोई चीज़ समझाने की कोशिश करो तो आई थिंक उसका इम्पैक्ट बेहतर होता है. ऑडियंस बोर नहीं होती क्योंकि एट द एंड फिल्म इज़ अ मीडियम फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस. तो आई थिंक उस तरह से यंग व्यूअर्स विल हैव अ गुड टाइम वॉचिंग दिस मूवी. एंड कहीं ना कहीं वो एक दो क्यूट स्वीट मैसेजेस भी हैं मूवी में कि अपना बचपन एंजॉय करें, डोंट रश बीइंग ओल्ड, जल्दी मतलब अपने बचपन को आराम से गुजरने दें, बड़े होने की जल्दी कोशिश ना करें. So I think young viewers will get a good mixture of a good film that will make them laugh and also एक दो प्यारे क्यूट से lessons बीच में. I haven't experienced bullying as of now. Back when I was in school, but of course when you're in the limelight or maybe जब आप थोड़ा सा रुझान होता है आपका स्टेज की तरफ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाने गाता था, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स एज वेल, तो आई वाज दैट द फेमस पॉपुलर बॉय इन स्कूल. तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं. तो चूँकि मैं थोड़ा सा मासूम था, शरीफ था, तो वो ज़्यादा मुझे अफेक्ट करती थी चीज़. बट एज सच मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बुली किया हो या इस तरह की कोई बात हुई हो. बट ऑफ कोर्स जब आप बातें सुनने की मिलती हैं आपको, या कोई भी जैसे आपका कोई दोस्त को मजाक उड़ाया आपका, तो आई थिंक आपको वो चीज़ मेंटली थोड़ा सा अफेक्ट करती है. एंड वे यू कैन डील विद इट इज़ कि आप बस सब्र रखें एंड जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाटएवर यू लव डूइंग. दैट्स इट. I think I would advise them to just stay calm in life, and I think it's very important to मतलब इंसान को अपने पर भरोसा होना चाहिए. जो भी चीज़ होती है इंसान के साथ वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की समझ आने लग जाती है. बट आई थिंक कि जो आप कर रहे हैं, जो भी आप जिस स्टेट में हैं, आप बस सुकून से बैठें. वक्त इंसान को बहुत चीज़ें सिखा देता है. उम्र से पहले या उम्र से ज़्यादा चीज़ें सीखने की इंसान को ज़रूरत नहीं होती. जस्ट होल्ड ऑन एंड जस्ट स्टे देयर. Trust the process, trust God, that's it. Yeah, I think peer pressure I faced in my life a lot. Everybody does. एक तो बचपन वाला peer pressure होता है जो स्कूल में होता है, when you want आपके दोस्तों की pressure से you want to try things. But I think more than that, अगर holistic बात करें peer pressure की, तो when I was initially doing music, I think I used to get influenced by my peers a lot कि वो लोग किस तरह का music कर रहे हैं, मेरे आसपास लोग. And I think that really is the last thing that you should do when you're making art. आपको original होना बड़ा ज़रूरी होता है. I think I realized कि I need to find my own sound, my own music and what I love doing myself, and not really get influenced by what's happening around me or what my peers are doing or what my friends are doing. So I think I feel like I've progressed from that time, and I try to do more original stuff now. But that's one instance that I remember being under some kind of pressure, peer pressure. I think it's very important. I think puberty and young teenage problems and just this period of when children are growing up, people don't talk about it that much. इस उम्र के बच्चों के issues को भी आप इतना serious नहीं लेते हो. तो when films like these in the most comical and sweetest way possible touch upon those subjects, I think parents and kids both really उनके लिए एक enlightening experience होगा. And I think more than that, if we just talk about the entertainment aspect of it, youth के लिए movies वैसे ही कम बनती हैं. It's usually more rom-coms या हम thrillers देख लेते हैं, but youth young boy movies where two young kids are getting into trouble, this kind of genre hasn't yet been explored in Pakistan yet, and it is being explored through Nabalig Afraad. So I'm really excited. I think this is genuinely a movie that hasn't इस तरह की मूवी एग्जैक्टली अभी पाकिस्तान में नहीं आई. सो नॉट जस्ट द यंग जनरेशन, आई थिंक people from all ages will have a good time when they see this film. One of the advices I think अगर मुझे मिल जाती तो things would have been, I think मैं तब भी समझ गया था इस चीज़ को कि एक कॉल है कि
आई डोंट नो इफ आई कैन गेट इट राइट और नॉट, बट ऐसे था कि वक्त से पहले नहीं और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं. I think this is one of the advices which I would want to give to all the youngsters out there कि just don't rush. वो एक जो वो होता है ना, कह लें कि जो बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है आपकी जो टीनेज एज की जो होती है ना, वो ये होता है कि आपको उस टाइम पे समझ नहीं होती इतनी, तो उस समझ को ज़्यादा जो है वो उसमें घुसने की कोशिश ना करें. एंड आई थिंक इट्स गुड. आपको इंसान वक्त के साथ साथ सब चीज़ें सीखता है. एक्सपीरियंसेस टीच यू अ लॉट. So just stay there, stay calm, and I think इतनी जो है ना हमारे असल में ना लोग आजकल जो बच्चे हैं वो बड़ा वो हो गए हैं, उनमें सब्र नहीं है. आप ठीक है, आई वुड वांट के सब्र रखें एंड चीज़ें इवेंचुअली विद टाइम ठीक हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में. तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवाइसेस व्हिच आई थॉट कि कभी मुझे अगर मिल जाती तो आई थिंक आई वुड हैव बीन फाइन, बिकॉज आई वाज टू इन्वॉल्व्ड इन माय यू नो स्टाफ दैट आई वाज डूइंग. मुझे था कि बस मैं जल्दी से सेट हो जाऊँ, करियर मेरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. तो मैं वो जो बचपन का जो एलिमेंट होता है ना आपका कि आप खेल कूदते बड़े हैं, दोस्तों में निकलते हैं, ये होता है वो होता है, वो मैंने बड़ा मिस किया आई थिंक. तो बच्चे हैं जो भी लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, आई थिंक दे शुड एंजॉय देयर चाइल्डहुड. वो टीनेज वाला जो चीज़ है, और जिस तरह हमारी मूवी का भी एक मैसेज है कि कुछ चीज़ें जो है वो इंसान को जो है वो सब्र के साथ ही आए तो बेहतर होता है. So yes, I think this is the advice which I would want to give to all the youngsters out there. I think my favorite scene would be the one in which we are running. जिसमें टीज़र में भी अगर आपने देखा हो तो हम दोनों जो है वो अपना सामान लेके भाग रहे हैं. और वो सीन क्यों है, किस लिए भाग रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं और किस वजह से हम भाग रहे हैं, ये आई थिंक सिनेमा में जाके देखेंगे लोग तो सबको पता लगेगा कि हम क्यों भाग रहे हैं. बट आई थिंक दैट वाज द फन पार्ट. एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा भी उसकी कहानी ये है कि ही वॉज़ वेरी इल एट दैट टाइम. जब हम वो सीन शूट कर रहे थे तो हम दोनों में ना मोहब्बत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो हम दोनों एक दूसरे का ख्याल बड़ा रख रहे थे. यार तूने पानी पिया तो ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, यार पानी लेके आओ, ये वो सही. तो वो भी एक चीज़ बड़ी जुड़ी हुई है उससे. तो आई थिंक वो सीन जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उसको शूट करने में, क्योंकि मज़ा भी सबको बड़ा आ रहा था. सब एक्स्ट्राज वगैरह जितने भी जो टैलेंट था, जूनियर आर्टिस्ट वगैरह थे, उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था वो सीन शूट करने में. आई थिंक या दैट्स वन ऑफ द सीन्स व्हिच आई काइंड ऑफ लाइक शूटिंग. यप. I think it's set in the 90s. So college life, how college life was in the 90s, एक चीज़ लोगों को देखने को मिलेगी इसमें. दूसरी चीज़, I think this movie is it really touches upon a bunch of such subjects, but it is an entertainer at the end of the day. So I think people, more than, of course you'll have those lessons that you learn from this film, but it's mostly going to be a fun watch for 1.5 quarter to 2 hours इतनी लंबी मूवी है. I've been part of projects and movies जो ज़्यादातर based होती हैं on a specific message जो मूवी देती है. But even though this movie touches upon subjects and it highlights upon a lot of things, it doesn't get preachy at any point. It is an entertainer at the end of the day. So आपको इन दो कैरेक्टर्स के लिए सिंपैथी ज़रूर होगी, आप हंसोगे इनके साथ, इन पे भी, बट ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप बुरा फील करने लग जाओगे. दिस मूवी इज़ नॉट गोना मेक यू फील बैड. आई थिंक दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इट एज वेल, एंड व्हाई आई वाज एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज वेल. कि इन 2024 व्हेन projects have art में भी बहुत political correctness आ गई है, everybody wants to be a little proper, this really lets go, this movie lets go, and it एक ऐसा flavor of comedy आपको देता है जिससे शायद पाकिस्तान में लोग हिचकिचाते हैं. So I think it does explore aspects of college life and everything, but in the most fun and entertaining way possible. I think वैसे तो बहुत सारे funny moments हैं, but एक ऐसा सीन था जो मैंने और इसने किया था साथ. उसमें मानी भाई भी थे, वाज हिलेरियस, एंड बड़ा कम हो रहा था कि मैं और समर कैरेक्टर ब्रेक करें क्योंकि इतनी गर्मी में हेक्टिक स्केड्यूल है. बट वो इतना फ़नी था सीन कि वो मेरी और इसकी वाकई हंसी छूट गई थी. एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट और सेकंड टाइम सेट पे कि हमारा कैरेक्टर हमने ब्रेक किया है. तो वो हम अच्छा खासा उस पर हंसे हैं. तो जो ऑडियंसेस देखेंगी वो मूवी, वो देखना कि एक ऐसा स्पेसिफिक सीन है जिसमें
मानी भाई की कैरेक्टर और हमारे कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन होता है, हाँ तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्यों हंसी आ रही वो है। बकायदा ऐसा था कि मैं, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था, वो इतनी हंसी आ रही थी, तो मैं यूं अपना ना मुंह पकड़ के मैं 5 मिनट मैंने रोका है कि बस कर दा, अब नहीं हंस इतना। तो इतनी हंसी आ रही थी, या तो वो हमें ज्यादा नींद आ रही थी उस दिन। नहीं हंसी, वो सीन ही बड़ा Scene funny था, ऐसा वो था। लोग जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। बहुत क्रेजी सीन था, एंड द वे मानी भाई वाज डूइंग इट was Yeah. looking more funny. Yeah. It would The be theme song. it would be the theme song to नामालूम अफराद। चलिए हम गाना भी गा दिया आप लोगों के लिए। I think I would want to switch my character with. I think I'm happy. I was happy in my own skin, but I think Adi का character ऐसा था कि he had this element of, you know, he was way more funnier than us, of course. चूँकि in real life भी अगर आप उनसे मिलें तो वो उसी तरह की हैं, तो I think just the way he's delivered his character, तो I kind of felt like यार ये मुझे भी करना है, मज़ेदार लग रहा है यार जिस तरह ही कर रहे हैं. I think his character is one of the characters which I would want to switch my character. I don't think I would want to switch with anyone. I think मतलब surprisingly enough मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ ना वो वही करना था मुझे। हाँ है ना, और हम दोनों के लिए शायद ऐसा है कि हालांकि दोनों भाई हैं और दोनों के अराउंड ही सारे मसले रिवॉल्व कर रहे हैं, बट आई थिंक good on Nabeel bhai and Fiza कि they've casted it perfectly. I don't think he could be Mazhar or I could be Fakhr. I think it's exactly the way it should be. इसका बड़ा नॉर्मल जवाब है, वो ये है कि नहीं, who took the longest to get ready on this set was I think Ehtisham bhai, who's playing as our father, because he had a whole beard that used to stick on, and because it was incredibly hot, तो वो उतर जाती थी दाढ़ी गर्मी में। तो बेचारे घंटे डेढ़ पहले आते थे। घंटे डेढ़ पहले आते थे, उनकी दाढ़ी लगती थी, तो वो he used to take the longest, but उनकी गलती नहीं थी बेचारे की। I think one of the messages, like I said previously, was कि all the teenagers out there, all the youngsters out there who take is कि जब भी हम कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका भी मैसेज यही है, इस मूवी के बारे में भी हम लोग अगर बात करें तो इस तरह से कि अगर आप वक्त से पहले कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं तो उसके क्या मसाइल आते हैं, तो ये हमने मूवी में दिखाया है। तो आई थिंक पीपल वुड टेक दिस मैसेज अलॉन्ग कि वक्त से पहले बड़े होने की कोशिश इंसान को नहीं करनी चाहिए, एंड आई थिंक सब्र रखना चाहिए। जो चीज़ आती है वक्त के हिसाब से आती है, और आगे भी जो भी आएगा वो उस वक्त के ऊपर महदूद है, इसीलिए वो आएगा। तो लेट्स जस्ट यू नो स्टे वेयर वी आर राइट नाउ एंड जस्ट एंजॉय द लाइफ, दैट्स इट। Yeah. Yep.